हेलो ऑल। जनरली स्टूडेंट ये सवाल मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर हाउ टू स्कोर 99.9 अबव परसेंटाइल इन कैट एग्जाम। ऑब्वियस थिंग इज lot of students who are appearing for CAT exam, they prepare well, but not all of them can score 99.9 above. तो जो स्टूडेंट्स टॉप 01 परसेंटाइल में आते हैं डेफिनेटली उनकी सोच उनके तरीके अलग होते हैं. In this series of CAT toppers way, I am going to teach you the way the toppers think while they take CAT exam. For last 12 years, I have been taking these exams and I have been consistently scoring 99.6 above in CAT, and specifically in Quant, I have been scoring 99.9 above consistently. So how do I solve the questions? तो एक simple topic मैंने लिया है percentage. There were 3 slots in which CAT 2020 exam was conducted. हर एक slot में percentage topic के ऊपर एक एक सवाल आया था. So आज के session में we will discuss these 3 questions and we will see how differently you can think and solve the questions correct in minimum time. So let us start with the question from the first lot जो CAT 2020 में आया था. So this was the first question asked in CAT exam. So everybody, please go through the question. I will read out to all of you. In a group of people, 28% of the members are young, while the rest are old. 65% of the members are literates and 25% of the literates are young. Then the percentage of old people among the illiterates is nearest to. Now, ये question is a typical question जिसमें population को divide किया है in 2 different categories. एक category according to the age and एक category according to the literacy. The trick to solve such questions is to draw the table. Table में column आएगा, row आएगा. Row में हम एक category लिखेंगे, column में एक category लिखेंगे. तो किस प्रकार देखिए, obviously this question can be solved using the basic method. Consider the total population as x, then young will be 0.28x, then literates will be 0.65x and so on. But that will take a lot of time. The easiest way is to write a table. तो table बनेगा इस प्रकार. You can clearly see I am not writing complete words. I am just writing first letters because exam के time आपके पास वक्त बहुत limited होता है. You have to utilize it carefully. So Y for young, O for old, T for total, I for illiterates, L for literates, T for total. कुल मिला के सब जितनी भी पॉपुलेशन है उसको मैं एक्स भी कह सकता हूँ. बट एक बात हमेशा देखिए कि अगर आपको क्वेश्चंस में यू कैन सी ऑल द परसेंटेजेस, देन यू कैन सी द बेस वैल्यू एज 100. सो आई ऑलवेज टीच दिस टेक्निक इन माय क्लासेस दैट कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है हमेशा उसको सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड होता है और उसको सॉल्व करने का एक टेक्निक होता है. बेसिक समझने के बाद आपका अगला काम होना चाहिए हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट. सो कंसिडर टोटल पॉपुलेशन एज 100. 28% मेंबर्स आर यंग. तो यहाँ पे यंग के नीचे टोटल हमें लिखना है 28. नाउ सिंस दिस इज 28, ओल्ड विल बी 72. सेम वे 65% आर लिटरेट्स. तो ये लिटरेट्स है 65 आउट ऑफ 100. तो इलिटरेट्स होंगे 35. अब ये भरने के बाद नेक्स्ट डेटा 25% ऑफ लिटरेट्स आर यंग. सो लिटरेट्स है 65, इसके 25% आर यंग. तो 65 का 25% आपको इस ब्लॉक में लिखना है. तो कैसे? नाउ 65 इज एन ऑड नंबर, तो वी विल यूज स्प्लिट मेथड. 65 को स्प्लिट करेंगे 64 एंड 1. तो 64 का 25% मतलब 1/4 वो आता है 16, एंड 1 का 25% 1/4 आता है 0.25. तो 65 का 1/4 आएगा 16.25. सो दिस इज द वे यू गेट द नंबर्स ओरली एंड फास्ट. और मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से बहुत स्लोली में आपको नहीं समझाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ दिस वीडियो. मोटिव इज टू टीच यू द टेक्निक्स. सो टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दीजिए. टोटल 28 यंग पीपल है, उसमें से 16.25 लिटरेट्स है. तो इलिटरेट्स ये आंकड़ा क्या होगा? 28 माइनस 16.2. हाउ टू डू इट ओरली? 28 माइनस 16 आता है 12, बट ये 16.25 है तो 12 में से 0.25 माइनस करो तो आता है 11.75. ये आंकड़ा. Now this number will be 35 minus 11.75. Now 35 minus 11 is 24. 24 minus 0.75 is 23.25. हमें ये आंकड़ा चाहिए क्योंकि सवाल पूछा है. This number is how much percent of this number. So 23.25 35 का कितना परसेंट. Now just see how to do it orally. यहाँ पे 24 होता
और यहाँ पे 36 होता, तो 24/36 आता है 2/3, एंड 2/3 होता है 66.66%. द क्लोजेस्ट नंबर टू दिस इज 66. टिक करो, आगे जाओ. वरना अगर आप बेसिक मेथड से करने लगेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के लिए यू हैव टू यूज कैलकुलेटर्स, एंड देन दैट विल टेक टाइम. आंसर इज 66. सो एक एक कदम पे, एक एक स्टेप पे there is a peculiar way using which you can solve the question fast. You have to understand those ways, and that we call as Popper's way. Now read this question. आप वीडियो पॉज करके ये सवाल पढ़ सकते हैं. I will directly start explaining. तो जॉन ने अप्रैल में व्हीट एंड राइस खरीदा था और मई में भी खरीदा था. अप्रैल के मुकाबले मई में राइस एंड व्हीट के प्राइस में इंक्रीज हुई, because of which he spent 150 rupees more. अब ये क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? तो कंसिडरिंग द टोटल अमाउंट्स. कोई बंदा टोटल अमाउंट एक्स बोल सकता है कि राइस एक्स केजी खरीदा, व्हीट एक्स केजी खरीदा. दैट इज द बुक मेथड. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट इज परचेस्ड इन बोथ द मंथ्स. सो इवन इफ यू कंसिडर एक्स और 10 और 100 और 1 और 5 और एनीथिंग, that is not going to make any difference. And in that case, what is the wiser way to do? Wiser way is to consider the total quantity as 1 kg. ये जिस बंदे को समझेगा वो कम से कम 15-20 सेकंड अपने बचाने वाला है इस क्वेश्चन में. किस प्रकार देखिए. So consider that this person John purchases 1 kg of rice and 1 kg of wheat in both the months. काम आसान हो जाता है, बिकॉज वेन यू कंसिडर द रेट, बिकॉज यहाँ पे एक रेट दिया है 450 रुपीज राइस के ऊपर उसने अप्रैल में स्पेंड किया है. तो 1 kg खरीदा 450 रुपीज में. तो अप्रैल महीने में जॉन ने राइस 450 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा. व्हीट कितने हिसाब से खरीदा वो पता नहीं, उसको बोलो एक्स. सो लेट अस कंसिडर द रेट ऑफ व्हीट एज एक्स रुपीज पर केजी. यह हमारी शुरुआत है. तो मुझे बताइए अप्रैल महीने में उसने कितना खर्च किया? राइस का 450 एंड व्हीट का 1 रुपीज. सो टोटल स्पेंड इन अप्रैल मंथ इज 450 प्लस एक्स. ना मई महीने में कितना खर्च किया? राइस का जो प्राइस है वो बढ़ता है 20% से एंड व्हीट का 12% से. सो राइस का जो रेट था वो था 450, उसमें 20% इंक्रीज होगी ना. 450 का 20% होता है 1/5, दैट इज 90. ऐड करो तो होता है 540. ये इमीडिएटली आपको आंकड़े मिल सकते हैं, बट यूजिंग द बेसिक मेथड 1.2, 20% इंक्रीज किया, 1.2 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 450, 12% ऐड किया, 1.12 से मल्टीप्लाई किया. ये टेक्निक्स मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा. एंड दैट ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट विल कम, यहाँ पे लिखा है कि 150 रुपीज उसने ज़्यादा स्पेंड किया है. तो जो अप्रैल महीने में स्पेंड किया था उसमें 150 ज़्यादा, तो 450 प्लस एक्स प्लस 150. left hand side equal to right hand side. One equation, one unknown. You solve this and you will get value of x. तो 450 plus 150 600 होता है. यहाँ पे जैसे मैंने बताया 540, you don't need to multiply by 1.2. 450 का 1/5 90 इसमें ऐड करो तो 540 मिलेगा आपको. So this 540 माइनस यहाँ पे 600 माइनस 540 60 आएगा राइट में. 0.212 से डिवाइड करो 60 को, 12 5 * 60 होता है तो ये आएगा 500. एंड आपको पूछा है ये व्हीट का नया प्राइस, मई महीने का प्राइस पूछा है. सो 12% ऐड करो. यू नीड नॉट मल्टीप्लाई बाय 1.12. 500 का 12% आएगा 12 5 * 60. 500 में ऐड करो, ये होता है 560 एंड दैट इज द आंसर. सो गॉट इट. सो ट्रिक वाज टू कंसिडर 1 kg एज द बेस वैल्यू. Now read this question, पॉज करके आप पढ़ सकते हो. सवाल में दिया है कि एक एग्जाम में विष्णु ने 52% स्कोर किया, आशा ने 64% स्कोर किया. एक तीसरा बंदा है रमेश, उसके मुकाबले विष्णु का स्कोर 23 कम था, आशा का 34 ज्यादा था. एंड देन और एक चौथा पर्सन है गीता, उसने 84% स्कोर किया, तो उसको कितने मार्क्स मिले? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया है ये सवाल. मैं पहले बताता हूँ कि किस प्रकार लोग सोचते हैं. अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, अगर एक्स किसी को बोलना है किसी के मार्क्स को, तो वो होगा ऑब्वियसली रमेश, बिकॉज रमेश के मुकाबले विष्णु को 23 कम है, आशा को 34 ज्यादा है. सो लेट अस कंसिडर मार्क्स ऑफ रमेश एज एक्स.
पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है। विष्णु के मार्क्स होंगे x माइनस 23, आशा के होंगे x प्लस 34, ये दिया है सवाल में। और ये जो x माइनस 23 है, ये पूरे मार्क्स के 52% है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं है, उसको हम बोलेंगे y. So this x minus 23 is equal to 52% of y. X plus 34 is 64% of y. You have two equations and you have two unknowns. You solve them, you will get value of y. Y मिलेगा तो उसका 84% निकालो and that will be the marks of गीता. And I tell you, ये तीसरे स्लॉट में ही मैंने दिया था लास्ट ईयर कैट एग्जाम. मैंने ये सवाल जब देखा, देखते ही मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट लाइक दिस. आई गॉट वन थिंग कि भले यहाँ पे रमेश का जिक्र किया है, आप रमेश के बिना भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो समझना क्या है यहाँ पे कि एक रेफरेंस पॉइंट है रमेश, मतलब उस पॉइंट से विष्णु 23 पीछे है एंड आशा 34 आगे है. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड आशा? एक बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट से विष्णु 23 पीछे, आशा 34 आगे, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आता है? 57. एंड दैट 57 का डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ दिस टू इज इक्वल टू 52% एंड 64% का डिफरेंस, दैट इज 12%. तो इतना समझ में आता है कि आउट ऑफ टोटल मार्क्स का 12% जो है दैट इज 57. हमें निकालना है 84%. 84 12% का 7 टाइम्स है, इसलिए मेरा आंसर आएगा 57 का 7 टाइम्स. मुझे सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ा, 57 इंटू 7. किस प्रकार? फिर से एक बार देखो, विष्णु एंड आशा के मार्क्स का डिफरेंस 57 है, विच इज 12% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, और मुझे चाहिए 84%. 12% का 84% 7 टाइम्स है, इसलिए आंसर आएगा 57 इंटू 7, दैट इज 399. तो बात समझ में आ रही है व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, तब मैं कहूंगा कि आपकी जर्नी शुरू हो गई है टुवर्ड्स 99 प्लस स्कोर इन कैट एग्जाम. हमेशा सोचिए कि 2.5 लाख पीपल टेक कैट एग्जाम एवरी ईयर. हर कोई बंदा कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करके कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा है. If your methods are different, then only you can score well and you can score more than the other people, because at the end you get the score in percentiles, and percentiles means percentage students scoring less than you. So we at ELC, our main focus is on teaching students these tricks in all the topics. When student come to know कि अरे इस प्रकार टॉपर सोचते हैं, तो स्टूडेंट की भी सोच उस प्रकार डेवलप होती है and they also start scoring well. So we have our website elceducation.com. अगर आपको प्रिपेयर करना है कैट के लिए तो हमारी ऑनलाइन बैचेस चल रही है. यू कैन जस्ट विजिट द वेबसाइट, यू विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर. और भी बाकी के टॉपिक्स के वीडियोस आई एम गोइंग टू पोस्ट स्लोली, तो उनको भी देखिए. ये अप्रोच आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए. ऑलराइट, ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.